Hi friends, welcome to my channel. Okay, this is a bright orange look. I think I had worn this on 15th August. Okay, um, I had already made a very long video for 30 minutes, but due to certain reason I was not too comfortable to upload it because there I was just in a free floor and I was giving a lot of honest, just बोलते ना honest reviews or views about things. I'm actually experimenting big time with my looks. Thank you so much. Okay, I don't know why people are so obsessed about their image. I think because in our modern times we have become like this, na. I won't say modern times. We are so obsessed. Even our gadgets become our part of our body. I remember. Okay, this is one I should not be sharing. मेरा फ़ोन ना टूटे फूटे हालत में था एंड आई लव दिस फ़ोन बिकॉज ये मेरे आई हैड परचेज दिस फ़ोन सेल में परचेज़ किया था MI का था एंड आई परचेज इट एंड इट वॉज डियर टू माई हार्ट तो आई वॉज नॉट लेटिंग इट गो इट वॉज वन पुराना फ़ोन. Now, someone who's very image conscious looked down upon me because of my phone. I said, please, phone मेरा और शर्म तुम्हें आ रही है. So, but I hope you. नहीं, I'll get you a new phone. I said, no, I don't need a new phone. I'm very emotionally attached to this phone. I'm emotionally attached. Now, what kind of a phone you want? लोग आजकल इज्जत सिर्फ डेजिग्नेशन, पोजीशन, गैजेट्स, एसेट्स उसी को देते हैं. तुम फिर कितने भी रबिश हो लाइफ में, यू आर पथेटिक, बट ऑल दिस मैटर्स. I'll tell you something, travel is overrated because I used to be pretty excited about travel. वो जो ब्रोशर में दिखता वैसा होता नहीं है एंड एंड अप आई डोंट नो व्हाई डू वी स्पेंड सो मच ऑफ टाइम इन अ होटल. आई रिमेंबर वंस व्हेन आई वेंट टू थाईलैंड आई एंजॉयड दैट बुटीक होटल बट आई डिडंट एंजॉय द एनवायरनमेंट अराउंड. आई होप यू अंडरस्टैंड. इट वॉज जस्ट लाइक बॉम्बे. बैंकॉक इज़ जस्ट लाइक बॉम्बे एंड और बहुत अजीब से खाने पीने की चीज़ें हैं बट इन द होटल इट वॉज प्रिटी गुड. मुझे लगता है बुटीक लोटस नाम याद नहीं आ रहा है बट आई एंजॉयड द होटल स्टे देन द प्लेस इट सेल्फ. और तुम क्या शॉपिंग करोगे, कितना शॉपिंग करोगे, क्या माल मसाला उठाओगे. ओके, देन आई वेंट टू वेयर डिड आई गो. आई डिड नॉट गो, आई कांट इवन गेट दैट नेम. ओके, Phuket. I went there. There also I enjoyed the resort more than the surroundings. See, this is like India only. It's just that वो थोड़े से exotic fruits है. I remember those people when I had gone Bangkok, तो वो zircon के जो ज्वेलरीज है ना वहाँ पे बेचते हैं. I was like ये तो false jewelry है and वो सस्ते भाव में बेच रहे थे and they were like in good designs and all. People are just buying them like, you know. और वहाँ का एक सिल्क कुछ था. मैंने ये सारी चीज़ें नहीं उठाई. मैंने बोला वाई डू वी गो अराउंड बाइंग थिंग्स विच वी डोंट रिक्वायर जस्ट बिकॉज वी ट्रैवल समवेयर. तो उठा ली. मैंने थोड़े बहुत एग्जॉटिक फूड्स इंजॉय किए. आई स्किप द जू कम्प्लीटली लिटरली though it was an customized itinerary. I remember going for some drag queen show, some cabaret show and I was like, God, seriously पैसा खर्च करके only you'll see those she-males who are so beautiful and all. I'm just giving my personal experience. People don't pounce on me, oh we enjoy vacation. In fact, I enjoy India more better. Another place I really enjoyed was Muscat, Oman. I'm not saying the city was, I like the city but I like that place called Mantra. It is a seaport, you know. So I enjoyed going there. I enjoyed that place. छोटे छोटे दुकान थे. It was just like इंडिया. तो आई डोंट नो वाई लोग इतना मर मराव के सिंगापुर जाते हैं. दैट्स अनदर सिटी. वाई डू वांट टू गो डाई एंड सी अनदर सिटी. मुझे कोई बोलता है ना शांति वेकेशन सिटी, मैं बोलूँगी नो, इट्स अ स्मॉल टाउन और अ विलेज. आई एम ऑलवेज वेलकम.
You know, when I was working in the Gulf, I was so tired of seeing those yucky skyscrapers and all that artificial thing कि I was just टेलिंग माई सेल्फ कि लोग मर मराओ के यहाँ पे आते हैं सिर्फ वो बड़े से बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए. मैंने बोला फुकट में भी नहीं जाने का है मेरे को. दिस इज़ वॉट आई यूज टू फील बिकॉज आई हैव सीन इट बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन फ्रंट ऑफ माई आइज़. इतना आर्टिफिशियल हर चीज़ उन लोग क्रोम और ग्लास का बनाते हैं और 1 साल के अंदर वो चढ़ जाता है वो बड़ा सा टावर. इट इज़ नॉट इवन इन न्यू बिल्डिंग्स आर नॉट. अगर तुम लोग को फ्लैट खरीदना है रियल एस्टेट वाइज आई एम टेलिंग यू, डू नॉट गेट कैरिड अवे विद ऑल दीज रियल एस्टेट गाइज हु गिव यू ज्ञान. द रियल थिंग इज़ व्हेन यू बाय अ ओल्डर प्रॉपर्टी विच मजबूत सी बिल्डिंग देखना चाहिए. नॉट लाइक माई बिल्डिंग. अच्छी खासी बिल्डिंग देखनी चाहिए विच इज़ लेस देन 7 to 8 floors, लेस देन 10 floor. मैं तो बोलूँगी एनीथिंग मोर देन 7 to 8 floors इज़ अ हेडेक. हु वांट्स टू स्टे ऑन दैट 14-15. मुझे तो वो भी ज़्यादा लगता है 20-25. मैंने बोला पागल हूँ क्या मैं. आई वुड प्रेफर बिना लिफ्ट की एक बिल्डिंग अगर कोई होगी ना फर्स्ट फ्लोर पे मुझे घर मिल जाएगा. आई विल डेफिनेटली टेक इट. सो डू नॉट बी कैरिड अवे. एक तो सस्ता भी रहता है. इसी ऑल यू नीड इज़ अ पार्किंग स्पेस. वो फालतू का स्विमिंग पूल जिम कौन यूज़ करता है. आर यू यूजिंग इट. आई हैव अब्रॉड में वो क्या करते हैं ना रेंटल्स. वहाँ पर पूरे रेंटल्स रहते हैं ना तो उन लोग वो ही देते हैं स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया. बच्चे हैं तो खेलने जाएंगे बस. तुम्हारे बच्चे के नीचे कंपाउंड में भी खेलेंगे वो भी प्ले एरिया है. सो डू नॉट बी ब्लाइंडली कैरिड अवे कि तुम लोग एक बहुत अच्छी हाउसिंग. मेरे सामने कितने बड़े बड़े हाउसिंग सोसाइटीज़ नए नए बन गए हैं लेकिन वहाँ का स्पेस देखो कितना कंजस्टेड है, कितना अजीब है. आई थिंक पीपल आफ्टर 2000s हैव स्टार्टेड कंस्ट्रक्टिंग इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर. या तो एकदम बड़े घर हाई सीलिंग देते थे पहले विद एल शेप. अभी वो सब मैक्स बॉक्स घर बन गए. आई टेल यू अ प्लेस वेयर आई हैड गॉन टू दिस or country head of a very huge multinational company, and you know when I went to their house it was on rent, okay, rentals, क्योंकि वो अपने employees को. एंड किचन खड़े रहने को भी नहीं है. इट वॉज ऑन द 22nd और 24th फ्लोर. आई सेड ये हायर डेजिग्नेशन ताम झाम नाटक नखरा. एंड मैंने बोला क्या है ये. किचन शुड बी स्पेशियस. मैं अपने किचन को भी एटलीस्ट ऐसे मुझे खड़े रहने के लिए तो जगह, एक फ्रिज रखने के लिए और एक प्लेटफॉर्म. बट व्हेन यू सी दिस दे आर सो अनकम्फर्टेबल. एक बैल्कनी भी नहीं थी उनकी. एक बैल्कनी थी बट पीपल आर ऑलवेज शटिंग देयर डोर्स एंड कीपिंग. आई डोंट थिंक वी डोंट हैव अ बैल्कनी. बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल कि फिर वो बैल्कनी को कवर अप करेंगे. आई यूज्ड टू सी हाउसेज ओवर हियर. इतनी जाली लगाएंगे, 2 जाली लगाएंगे, वो भी कवर करेंगे. फिर एक नेट लगाएंगे बिकॉज सम पिजन्स आर कमिंग सम. अरे आने दे यार, एनिमल है, आएगा निकल जाएगा, डर्टी करेगा, साफ कर लो. बट पीपल आर सो ऑब्सेस्ड विथ सच थिंग्स. यू नो रियल एस्टेट में अगर तुम्हें फुकट का कोई ज्ञान देता है ना, दैट इज़ इफ़ यू हैव टू मच ऑफ मनी. आई हैव सीन पीपल लिटरली बीइंग इन डेट्स, इन मॉर्गेजेस, पेइंग फॉर अनदर 20. नया बड़ा हाउसिंग उसमें कितने लोग हैं, कितने टावर्स रहते हैं, 500 फ्लैट. रादर आई वुड बी इन समबडी विद लेस देन 100 फ्लैट्स. जैसे ये बिल्डिंग में ए विंग बी विंग मे बी 80 फ्लैट्स. दैट ऑल्सो 70% of them are on rental. 70 to 80%. Only 20% or 10% owners are there. It's a fact because everybody is shifting to bigger buildings, nicer buildings. So अगर तुम्हें एक अच्छे से मजबूत पुराने बिल्डिंग में which is well maintained, let me tell you all over again, if it is well maintained and you've got a, अभी when you see new buildings they are like stilted parking, means double parking. स्टिल्टेड पार्किंग मीन्स एक पार्किंग के ऊपर दूसरा पार्किंग. वो इट्स सो स्ट्रेंज ना. जहाँ पे तो यू गॉट स्पेस इन अ पार्क योर कार, ओके. एंड अनदर थिंग इज़ दैट मेंटेनेंस काफ़ी लो रहता है. एंड अगर कोई गार्डन वार्डन है तो और भी अच्छा है. और ये देखो कि वेल मेंटेन्ड है, वेल केप्ट है. इफ़ यू टेकिंग इन अ पुराना बिल्डिंग. बॉम्बे में लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो आई डोंट नो द न्यू कमर्स, उनको लगता है बड़े से. जैसे मैं आई टेल यू आई हैव लिव्ड इन द टाउन में, महिम में रहती. वहाँ पे झुग्गी झोपड़पट्टी होती थी एंड देयर वाज अ डेपो. तो उन्होंने झुग्गी को वो सॉरी झोपड़पट्टी मतलब चौल को रख दिया है. एंड वो डेपो जो था वो एक गवर्नमेंट लैंड था, वो चर्च का लैंड था और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. पहले एक डेपो रहता था. डेपो हटा के एक बिल्डर ने ले लिया एंड दे मेड अ वेरी ऊंचा, वेरी बिग स्टोरी बिल्डिंग ओवर देयर.
एंड कैन यू बिलीव दैट वहाँ पे लाखों लोग भक्त आते हैं, बिकॉज ये डेपो था रोड क्रॉस करके, इट इज़ द चर्च, मतलब एवरीबडी विल कम डाउन, कहाँ कहाँ से लोग, ट्रेन, वेनेसडे, मतलब लाखों लोग आते हैं वहाँ पर, और वहाँ पे शॉपिंग भी होती थी, वो रास्ते की शॉपिंग। अभी वो निकाल दिया, तो वो अभी क्या हुआ है, बहुत बड़ा, पिछले 10 सालों से शायद बहुत बड़ा टावर आ चुका है, एंड आसपास हाउ कंजेस्टेड इट इज़, हाउ स्ट्रेंज इट इज़। हाँ, दिल से सी फेसिंग, वो खाड़ी है, क्रीक, एंड वो इट्स नॉट अ वेरी प्लेजेंट स्मेल कमिंग आउट ऑफ इट, बिकॉज आई हैव लिव्ड दैट साइड, सो आई नो इन साइड आउट। अगर कोई बोलता है ना कि भाई वी आर लिविंग इन द टाउन, दादर देखो कितना कंजेस्टेड है, प्रभा देवी कितना कंजेस्ट है, हाफ द पीपल विल बी, वर्ली, बीबीडी, चौल, एवरीबडी विल बी स्टेइंग इन स्मॉल बेसमेंट, लाइक नो स्मॉल 10x10 के फ्लैट चौल में। तो ये टाउन टाउन बोलते हैं, टाउन में भी वो चॉल्स कितने महंगे भाई। आई सेड व्हाई रादर यू कम टू द सबर्ब्स, एक पुराने से बिल्डिंग में एक अच्छा खासा जो वेल मेंटेन्ड है, इन्वेस्ट ओवर देयर, डू नॉट बी ब्लाइंड, डू नॉट वेस्ट योर मनी, डू नॉट बी कैरिड अवे। एड्रेस मैटर्स, ड्रेस एंड एड्रेस मैटर्स। फिर क्या तुम्हारा एड्रेस और ड्रेस को क्या ये स्पॉन्सर करने आ जाएंगे लोग? डोंट बी अ ब्लाइंड फूल। इट्स बिकॉज मेरे आसपास सारे के सारे नए कंस्ट्रक्शन है, ह्यूज ह्यूज टावर्स, जबकि ये एयरपोर्ट के पास है। आई डोंट नो हाउ दे आर गिविंग द, क्या बोलते हैं ना, परमिशन। एक ज़माने में दे नॉट मोर देन 4 फ्लोर्स, वो 7th फ्लोर को भी बिल्कुल भी इजाज़त नहीं देते हैं। 7th फ्लोर यूज टू बी इलीगल ओवर हियर बिकॉज इट इज़ जस्ट नेक्स्ट टू द एयरपोर्ट, और ये बड़े बड़े टावर बन रहे हैं अभी, और उनके ऊपर एक सिग्नल बन रहा है, रेड लाइट्स, कुछ एक लाइट इज़ ब्लिंकिंग, 22nd फ्लोर, और ये अनदर 25th फ्लोर, और उसके पीछे मैंने कनाकिया फॉरेस्ट जिससे बताया है, वो एक माउंटेन हिल पे है, वहाँ पे बंगलो रहता था, फॉरेस्ट रहता था, उसको हटा के फिर आगे भी ना देयर वाज अ गार्डन, उसको हटा के, सी इट इज़ अ वेरी हिली एरिया फुल ऑफ रॉक्स। हाँ, तो उनको वो एस्केवेशन करना पड़ता है। देयर यूज्ड टू बी अ स्मॉल गार्डन ओवर हियर, आई रिमेंबर गोइंग, बिकॉज आई रिमेंबर सन 20 years। मैंने सर वेर इज़ द गार्डन, देखा जाए तो इतना बड़ा टावर आ गया वहाँ पे विद सो मैनी, क्या बोलते हैं ना, सो मैनी विंग्स, सो मैनी, सच अ बिग, लाइक मैं ABCD, आई डोंट नो व्हाट। सो अंधाधुंध पैसे के पीछे पड़े हैं। मेरे यहाँ पे दूसरा एक छोटा सा गार्डन है वेयर आई यूज्ड टू डू द शूट, उसके पीछे भी बहुत बड़ा बिल्डिंग आ गया है, जबकि वहाँ पे आई थिंक देयर वाज a chawl or something which the owner must have sold it। तो यहाँ पे ना pockets of land रहता है with chawl and the owners are different, right? तो ये this is a huge prime location। तो यहाँ पे builders are very greedy and people become very attracted over here, right? मैं तो बोलती हूँ नहीं, इफ़ यू कैन नॉट अफोर्ड, और तुम्हारा बजट लेस देन 1 करोड़ है, और तुम्हारे पास उतना लिक्विड कैश है दैट यू कैन अफोर्ड, और तुम थोड़ा सा लोन लेते हो, प्लीज़ गो इन फॉर 1 BHK इन अ गुड बिल्डिंग। लोग जाते हैं मीरा रोड के बियॉन्ड, मैंने बोला मीरा रोड में कितने भी अच्छे फ्लैट्स हैं, मीरा रोड इज़ थाने डिस्ट्रिक्ट, ओके। एनीथिंग बियॉन्ड धईसर इज़ बिल्कुल नॉट दिस। तुम लोग का जो भी जॉब वॉब रहता है वो इनसाइड बॉम्बे लिमिट्स में रहता है, अनलेस एंड until you're working in some Thane somewhere over there। I don't know why people want bigger, what is more important, it's your job, all the facilities should be nearby, right? तो तुम लोग इतने एक अच्छा खासा एक इन्वेस्ट करो, जो आसपास एक बिल्डिंग वेल मेंटेन फ्लैट है, तुम वहाँ आराम से मिल जाएगा लेस देन, बट पीपल डू नॉट वांट दैट, राइट? यंगस्टर्स को सब तामझाम चाहिए। और मैंने हमारे बिल्डिंग में भी देखे कि इतने, मैंने बोला अगर तुम लोग के पास 25-25 लाख की गाड़ी अगर चला, तुम यहाँ पे क्यों रेंग रहे हो? पार्किंग में देखना चाहिए था। वन ऑफ द रेंटल्स हैव अ कार वर्थ 50 lakhs of rupees, लिटरली यार, दिस पर्सन मस्ट बी फ्रॉम पंजाब और समथिंग। मैंने बोला इतनी महंगी गाड़ी कौन चलाता है अभी? वंस अपॉन अ टाइम यहाँ वैगनर और वो छोटे मोटे स्विफ्ट वगैरह रहते थे, बट पास्ट 2-3 years इट्स ऑल ब्रांडेड कार्स, एंड यू रियली वंडर, लाइक यू नो, कि ये बाप रे, लाइक एंड एक ही व्हीकल नहीं रहेगा, लाइक एवरीबडी इज़ अपग्रेडेड, एवरी सिंगल पर्सन इज़ अपग्रेडेड, फिर ऊपर से उनका एक बाइक भी रहेगा, फिर एक 2-wheeler भी रहेगा। सो पीपल आर बिकम वेरी मटीरियलिस्टिक, और अपने ये वाले पुराने फ्लैट में भी इतने लाखों खर्चा करने का कोई मीनिंग नहीं बनता है, बिकॉज
यू शुड मेक इट नीट एंड नाइस, बट लोगों ने काफ़ी ये किया है विच इज़ अगेंस्ट द सोसाइटी का, वो ना पूरा स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं कर सकते बिकॉज ये पुरानी बिल्डिंग है, थोड़ा सा हाथ लगाएंगे तो बहुत डैमेज होता है. सो डोंट बी फुलिश. अपने इंटीरियर्स को तुम जितना सिंपल रखो, स्पेशियस रखो, नीट एंड क्लीन पेंटिंग रखो, काफ़ी है. आई थिंक पीपल वे बैक इन द 80s एंड 90s वर प्रैक्टिकली वेरी सिंपल. किचन पे इतना तामझाम है. किचन इज सपोज टू बी डर्टी, तुम कितना नाटक करोगे उसके. कैबिनेट शुड बी नीट एंड नाइस वेयर यू कैन कीप योर गैजेट सेफ, राइट. एंड इट शुड बी सेफ्टी फीचर्स शुड बी नंबर वन प्रायोरिटी. कुछ किचन में देखते मैंने, हमारा खाना बनता है कि नहीं यहाँ पे, या सिर्फ स्टाइल भाई. और हाँ, मैं तो आई एम गोइंग टू नाउ क्लियर आउट माई किचन क्लटर एंड रिमूव ऑल द थिंग्स, द यूटेंसिल्स और दोस things which we don't apply and dump it in some box and keep it somewhere. Hardly we use it. मैंने लोगों को कपड़ों में भी देखा है कि हाई फाई ब्रांड्स यूज़ करेंगे, एक टी शर्ट के ऊपर 1000 रुपीज़ वेस्ट करेंगे, विच मेक्स नो सेंस. स्टूपिडिटी टू वेस्ट सो मच ऑफ मनी ऑन सच थिंग्स, राइट ना. बट अभी बोले तो बोले, किसको क्या बोले. 1 मिनट. हाँ, तो साफ़ सफाई में इतना टाइम लग गया है ना, मैं क्या बताऊँ. लिटरली यू नो, क्लियरिंग द क्लटर, एक एक चीज़ मैनेज करना इज़ नॉट ईजी. यार क्लटर मत क्रिएट करो अपने लाइफ में प्लीज़. मेरा यही विनती है तुम लोगों से. हमारे जो ज़माने के लोग थे ना, लाइक माई पेरेंट्स एंड ऑल दैट साइड, माई फादर वॉज नॉट सो मच बट माई मदर हैज़ दिस क्लटर. सारी चीज़ें उसको जमा करनी है, पुरानी टूटी फूटी. नहीं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, बट क्यों चाहिए. गिव इट टू समबडी और सेल इट और गिव इट, डोनेट. I'm happy with my gardening. Tomorrow, if I can show you my plants, they are amazing, amazing. In fact, I should start this business, Shan's compost, 500 grams, half a kg, and I'll tell them do not use so much of it. Okay, I'll get back to you guys. Bye.